Good morning, students. Today, in the fourth chapter of English grammar, we will study about nouns number, that is, singular and plural. Singular means one or single, and plural means more than one. In your junior classes, you have learnt it as one, many, but as you will grow up, you have grown up, you have come to higher classes, we read one and many as singular and plural. Okay? Now, and students, to write the singular nouns and plural nouns, that is, from singular nouns we change to plural nouns, there are different rules. We have to follow different rules to change the nouns from singular to plural. Let us learn them. Now, in the first one, see in this box, you see the first one? The words that end in CH, SH, S, double S and X. Okay? The words that end with these letters like CH, SH, S, double S and X. We add ES in the end to make that singular word into plural. Like, see the examples. Church. In church, the last two words are CH. It is ending with CH. So, to make this singular church into plural, we will add ES in the end. It will become churches. Torch, same. Torch is also ending with CH. So, here also we will add ES to make it plural. Bus. In bus, the last word is, it is ending with S. So, the words that end with S, we add there also ES to make it plural. Glass is ending with double S. We will add ES to it to make it plural. So, the words that end with these letters, there we have to add ES to make it plural. Now, there are few exceptions, like in ox. Ox is ending with X, but ox, to make the ox into plural, we will not add ES, but we will write oxen. Ox's plural form is oxen, not oxes. It is an exception. You will have to remember it. X's ending in S, but we will not add ES to it to make it plural, but only the spelling of it will change. Instead of I, we will write E. The pronunciation will also be same, but only the spelling will change to turn it into plural form. Okay? But in box, if we write box, it is ending in X, box will become boxes. But this ox is an exception. We will have to remember it that ox's plural form is oxen. In the second column second row you see, the words that end with Z. There we add ZES to make it into plural form. Like, for example, you see quiz. Quiz is ending with the letter Z. So, to make the quiz into plural form, we will add ZES. It will become
quizzes. The words that end with letter O. The words that end with letter O, there also we add es to make it into plural form. Like for examples, buffalo, potato and volcano. All these three words you see, they are ending with the letter O. And to make these words into plural form, we will add es. Like buffalo will become buffaloes. We are ending es after O to make it into plural form. Potato will become potatoes. Volcano will become volcanoes. But there are few exceptions here also, like piano, studio and zoo. These words are also ending with the letter O, but here we will not add es. Here we will only add s. It is an exception. Now these exceptional words, students, आपको ये जो words हैं इनको याद रखना पड़ेगा कि ये words में भी ओ लेटर आता है लास्ट में, लेकिन हम लोग ई एस नहीं ऐड करेंगे. हम लोग यहाँ पर सिर्फ एस ऐड करेंगे प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए. नाउ द वर्ड्स दैट एंड विथ एफ एंड एफ ई. जो वर्ड्स एफ एंड एफ ई से एंड होते हैं उन वर्ड्स को किस तरह चेंज करेंगे. उन वर्ड्स में जो एफ और एफ ई की प्लेस में हम लोग वी लिख देंगे. एफ या एफ ई को वी से रिप्लेस कर देंगे और क्या ऐड करेंगे, ई एस. यानी कि एफ हटाकर हम लोग क्या लिख देंगे, वी ई एस. लाइक सी द एग्जाम्पल्स में क्या दिए हुए हैं, लोफ, हाफ, नाइफ. तीनों वर्ड्स एफ और एफ ई से एंड हो रहे हैं और इनको हम लोग किस तरह प्लूरल फॉर्म में लाएंगे. लोफ विल बिकम लोव्स. लोफ में एफ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वी लिख देंगे और ई एस ऐड कर देंगे. सिमिलरली हाफ की जगह एफ की जगह वी लिखेंगे और ई एस ऐड करेंगे. नाइफ में एफ ई की जगह वी लिखेंगे और ई एस ऐड कर देंगे. इट विल बिकम नाइव्स. लोफ विल बिकम लोव्स. हाफ विल बिकम हाव्स. नाइफ विल बिकम नाइव्स. यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं स्टूडेंट्स. यू सी लाइक बिलीफ, रूफ, चीफ. ये वर्ड्स भी एफ से एंड हो रहे हैं, लेकिन हम लोग ना ही एफ को रिप्लेस कर रहे हैं ना ही ई एस ऐड कर रहे हैं. इनमें हम लोग सिंपली एस ऐड करते हैं. बिलीफ्स हो जाते हैं, BELIEF. हम लोगों ने इसमें क्या ऐड कर दिया, ओनली एस. तो ये क्या हो गया, बिलीफ्स. नाउ ये एक्सेप्शंस हैं. जो एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं उनमें रूल्स अप्लाई नहीं किए जाते हैं. उनको आपको उन वर्ड्स को याद रखना है. Now the words that end in a consonant or Y. जो words consonant Y से end होते हैं उनका रूल क्या है. इन वर्ड्स में Y को हम लोग I से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि Y की जगह I लिख देंगे और उसके बाद हम लोग ES ऐड कर देंगे. लाइक इन द एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स, एनिमी, फैमिली, यूनिवर्सिटी. तीनों वर्ड्स किन से एंड हो रहे हैं, वाई से एंड हो रहे हैं. जब हम इनको प्लूरल फॉर्म में लाएंगे तो फिर एनिमी, वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई, और आई के बाद ES ऐड कर देंगे.
इसी तरह फैमिली में भी y की जगह वी ऐड I एंड ऐड ES। यूनिवर्सिटी में y की जगह I लिखेंगे और ES ऐड कर देंगे तो एनिमी बन जाएगा एनिमीज, फैमिली बन जाएगा फैमिलीज, यूनिवर्सिटी बन जाएगा यूनिवर्सिटीज। Another rule, the words that end in a vowel and y। Now जो words y से end होते हैं, लेकिन इन द प्रीवियस वाले में मैंने जो बताया एनिमी, फैमिली, यूनिवर्सिटी, इनमें y से पहले कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट है। M, L, T तीनों वर्ड्स में जो है लास्ट y से पहले सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। जो वर्ड्स में कॉन्सोनेंट y से पहले कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट कौन से वर्ड्स होते हैं? जो वोवल्स के अलावा होते हैं लेटर्स, उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वोवल्स हमारे 5 होते हैं। तो जो वर्ड्स y से पहले कॉन्सोनेंट रहता है जिन वर्ड्स में, उनमें हम लोग y की जगह I लिखकर ES लिखते हैं। नाउ इन द लास्ट वन यू सी, अब जो वर्ड्स y से एंड होते हैं लेकिन y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट वोवल है, सॉरी, y से पहले अगर वोवल है तो उनके रूल में क्या आएगा? हम लोग यहाँ y को रिप्लेस नहीं करेंगे किसी भी लेटर से, सिंपली हम लोग प्लूरल बनाने के लिए s ऐड कर देंगे। लाइक इन टर्की, मंकी, वैली, तीनों वर्ड्स y से एंड हो रहे हैं लेकिन y से पहले देखिए कौन सा लेटर दिया हुआ है? e। टर्की में y से पहले e है, e हमारा वोवेल होता है, तो फिर हम लोग y को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली उसको टर्की को प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए s ऐड कर देंगे, दैट इज़ वी विल ऐड s टर्कीज़। मंकी में भी y से पहले वोवल है e, तो हम लोग मंकीज़ में भी s ऐड करेंगे। वैलीज़ में भी, वैली में भी y से पहले e है, तो उसमें भी हम लोग सिंपली s ऐड करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कुछ नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम प्लूरल फॉर्म में ले जाएंगे तब भी उनकी स्पेलिंग सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, देयर विल बी नो चेंजेस। जो वर्ड हम लोग सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे सेम वर्ड हम लोग प्लूरल फॉर्म में भी लिखेंगे, यानी कि यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लाइक सी द वर्ड्स, शीप विल रिमेन शीप। सिंगुलर शीप जो है, जो हम जब प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तब भी हम शीप ही लिखेंगे, इसमें कुछ भी ना ऐड होगा ना ही कुछ वर्ड या लेटर चेंज होगा। ओके, फिश विल रिमेन फिश, एयरक्राफ्ट विल रिमेन एयरक्राफ्ट, डियर विल रिमेन डियर, स्पीशीज़ विल रिमेन स्पीशीज़, पुलिस विल रिमेन पुलिस। नाउ ये वर्ड्स भी स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर से जब प्लूरल फॉर्म में लिखने हैं तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये वर्ड्स भी आपको याद करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ irregular plurals। इरेगुलर प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं किया जाता है। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं, ना ही इसमें कुछ ऐड किया जाता है
ना ही इसमें कोई लेटर चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। ओके, इनमें कोई भी पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं किया जाता है, इनमें वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं। लाइक सिंगुलर में पर्सन, पर्सन कब कहते हैं? जब एक इंसान होता है। लेकिन अ ग्रुप ऑफ पीपल जब आएंगे, जब बहुत सारे पर्सन होंगे, तो हम लोग उनको प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा पर्सन का? पीपल। पर्सन का क्या हो जाएगा? पीपल। यू सी स्टूडेंट्स, पर्सन से प्लूरल जब लिखेंगे तो पूरा वर्ड ही चेंज हो गया। क्या हो गया? पीपल। मैन का मैन, स्पेलिंग चेंज हो गई इधर। MAN मैन मीन्स वन मैन, एंड MEN मैन जब लिखेंगे यानी कि मोर देन वन मैन। गूज का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? गीज। माउस का प्लूरल फॉर्म माइस। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ऑक्सन। कैक्टस का कैक्टाई। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन। फंगस का प्लूरल फॉर्म फंगाई। सिलेबस का प्लूरल फॉर्म सिलेबाई। एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म एनालिसिस। एनालिसिस में यू सी सिर्फ स्पेलिंग चेंज हुई है। लाइक मैन में भी स्पेलिंग चेंज हुई थी, इधर भी स्पेलिंग चेंज हुई है। ओएसिस, ओएसिस यहाँ पे भी स्पेलिंग चेंज हो जा रही है। फुट का अनदर वर्ड आ गया फीट। तो स्टूडेंट्स, ये जो इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं इनको आपको याद करना पड़ेंगे। ये आप क्योंकि इनमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, आप इनमें कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, गूज का गीज होगा। इस तरह आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव स्टडीड द singular and plural form of nouns.